میرے بھائیوں، محبت دل کی وابستگی، روح کا میلان اس کو کہا جاتا ہے۔ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے۔ جو چیزیں دل میں پنپتی ہیں، جو خواہشات دل کے اندر قرار پکڑتی ہیں، سارا وجود وہی کرتا ہے۔ انسان کا پورا نظام اسی دل کی فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی، چیزوں کے مضر اثرات سے آگاہی رکھتے ہوئے بھی بعض اوقات دل ایسی چیزوں کی طرف میلان کرتا ہے جو بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ انسان کے وجود کا بھی، اس کی روح کا بھی، اس کے باطن کا بھی وہ چیزیں بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں، لیکن انسان ان سے بعض اوقات نجات نہیں حاصل کر پاتا۔ مثلا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہرس، لالچ، ہوس ایک وہ اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ضروریات کا رزق عطا کر دے اور ضروریات پوری ہونے لگ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بعض لوگ مال کی ہرس میں، ہوس میں، لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ سے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ یا دل تو نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بس میری ضروریات پوری ہونے لگ جائیں، 2 وقت کی روٹی چلنے لگ جائے، بچوں کے اخراجات نکلنے لگ جائیں، سر چھپانے کو ایک مکان مل جائے تو کافی ہے۔ اب تو کدھر نکل گیا؟ بہت سارا اس سے بڑھ کر اللہ نے فضل کر دیا، خواہش سے بڑھ کر عطا کر دیا، لیکن کہیں ٹھہراؤ نہیں ہو پا رہا، دل رک نہیں رہا۔ روز مال کی محبت، مال کا لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس قدر زیادہ نقصان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ بڑا گہرا مرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مرض آ جائے تو اس کی وجہ سے 70 مرض اور بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت وہ مرض ہے، مال کی محبت وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ لوگ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر خونی رشتوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر محبت کو صحیح رستہ نہ ملا، یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوانات کی عادی نہ ہوئی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ مال کی محبت تو پورے طور پر اجاڑ دے گی، اندر کو تباہ کر دے گی۔ ایک دوسری محبت بڑا نقصان کرتی ہے، وہ ہے شہرت کی محبت۔ میں چاہا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں، کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤں، لوگ میرا نام لینے لگیں۔ آپ یقین کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے وزادار، بڑے بڑے باریش لوگ، بڑے بڑے اچھے اور اچھی قد و قامت اور اچھا نام رکھنے والے لوگ فقط مشہور ہونے کے لیے وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی دیکھے تو شرم سے اس کی نظر جھک جاتی۔ یہ شہرت، اس کا لالچ، یہ شہرت کی طلب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک طریقوں کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کمزور اور ایسے اخلاق سے گرے ہوئے رویے کا انداز تباہ کر دیا اس نے دنیا کو، اجاڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں، اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اچھے بھلے معاملہ فہم لوگ تھے، الجھ گئے ہیں۔ ذہن بن گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی شہرت ہی ہے۔ وہ میرے بھائیوں سنو، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔
وہ काबिल मुबारकबाद है जिसका तारुफ कम लोगों में, ज्यादा लोगों में जिसकी शनाख्त नहीं है। मेरे भाई, आप कभी उन लोगों से पूछ कर तो देखो, उनसे कभी मुलाकात तो करो जो बड़े मशहूर हो गए। कभी उनकी तन्हाई में उनके पास तो बैठो, उनसे पूछो तो सही। इस शोहरत के सबब से उन्हें कुछ ऐसे काम भी करना पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते। उन्हें कुछ ऐसे रस्तों से भी गुजरना पड़ता है जहां से गुजरने का कभी उन्होंने सोचा भी ना था। वो तो चाहते थे कि कोई तन्हाई होती, कुरान मजीद का नुस्खा होता, 500 दाने वाली तस्बीह होती, कहीं मुसल्ले का नूर होता, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दिल चाहता था, लेकिन ये शोहरत, इसकी तलब। हाँ, एक बात है, अगर आप शोहरत चाहते हैं, मारूफ होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में चाहते हैं कि आपका नाम सुनहरी हुरूफ से हो और ज्यादा लोग आपको जाने पहचाने, तो कुरान मजीद ने नुस्खा दिया है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेगा, रब लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। रहमान ऐसा माहौल बना देगा कि उन लोगों के दिलों में, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा कर देगा। एक और मोहब्बत होती है, औलाद की मोहब्बत। बड़ी अच्छी मोहब्बत है, होनी चाहिए। लेकिन अगर यही औलाद शरीयत के रास्ते में आने लगे, अगर यही औलाद इस तरह का रवैया इख्तियार होने लगे कि आपको उसकी खातर हलाल हराम की तमीज भूलना पड़े, या औलाद कहीं रुकावट बने शरीयत की राह में, तो फिर कुरान मजीद ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फिर ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। फिर तुम्हें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, तुम्हें फिर देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें तवज्जो करनी पड़ेगी कि कहीं अल्लाह रसूल के रास्ते में तो नहीं आ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने एक दफा कहा था कि अब्बा जी, मुसलमान होने से पहले जब बदर के दिन मैं कुफार की तरफ से लड़ते हुए आ रहा था तो आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे। मैं आपको कत्ल कर सकता था, पर मैंने बाप समझ करके छोड़ दिया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, बेटा तो अभी कलमा नहीं पढ़ता था, तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू बदर वाले दिन मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तुझे कभी बेटा समझ के माफ ना करता, दीन का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि जो औलाद शरीयत के रास्ते में आएगी, दीन के रास्ते में आएगी, पैगाम हक के रास्ते में आएगी, उसे औलाद समझकर दरगुजर थोड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, वतन की मोहब्बत भी कभी गालिब आती है, इलाके की मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। इंसान जहां पैदा होता है, जहां जवान होता है, जहां वक्त गुजारता है, जहां उसके अहबाब होते हैं, जहां उसकी दोस्तियां होती हैं, जहां उसके ताल्लुकात होते हैं, वो मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। लेकिन याद रखना, सारा कुछ ही मक्का मुकरमा में मौजूद था। वहीं पैदा हुए थे सहाबा, वहीं दोस्तियां थीं, ताल्लुक थे, रिश्तेदारियां थीं। लेकिन जब पता चला ना कि महबूब को मदीना पसंद है, तो फिर किसी ने भी वतन से प्यार नहीं किया, मोहम्मद अरबी के शहर से मोहब्बत फरमाई है। आप इन सारी मोहब्बतों को गिनते जाएं, वो दौलत की हो, वो शोहरत की हो, वो इख्तदार की हो, वो औलाद की हो, वो मोहब्बत आपके लिए वतन की मोहब्बत हो, ये सारी मोहब्बतें कुर्बान की जाएंगी। लेकिन अगर किसी मोहब्बत को हासिल किया जाएगा तो वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो मोहब्बत किस तरह हासिल करनी है? दिलो जान से ना रब रसूल का हर फैसला कबूल करना है। ये जरा गौर कीजिएगा, ये थोड़ा समझने वाला उन्वान है। आप अपनी कल्ब से, रूह से, दिल से पूछें कि मुझे प्यार है नबी पाक से। दाता साहब ने एक मकाम पे लिखा है, जिससे मोहब्बत हो उस पर गुस्सा नहीं आता, जिससे मोहब्बत हो उसकी तरफ सफर करें तो रास्ता मुश्किल नहीं लगता। जिससे मोहब्बत हो वो कोई हुक्म दे तो वो हुक्म पूरा करने में इंसान कोई रुकावट महसूस नहीं करता। ये जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत ये रास्ते आसान कर देती है।
हुक्म मानना आसान कर देती है। महबूब कुछ भी कह दे, किसी वक्त भी कह दे, किसी रंग में भी कह दे, किसी हाल में भी कह दे। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को इतना खूबसूरत बना देती है कि कमाल हो जाता है। जब एक अंसारी ने ना नबी करीम अलैहिस्सलाम का फैसला पूरे तौर पर नहीं ना माना, हुजूर ने एक फैसला किया, एक अंसारी थे तो उन्होंने वो फैसला पूरे तौर पर तस्लीम नहीं किया। अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में एक अनोखा अंदाज इख्तियार किया और इस अंदाज की कुरान मजीद में ये वाहिद आयत है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। अल्लाह करे आपको समझ आई हो, कुरान मजीद की लज्जत आई हो। जरा ये अंदाज देखिए, ये नहीं फरमाया कि मुझे मेरी कसम हो या तेरी कसम हो। फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। रब आखे है सोने महबूबा, तेरे 100 नाज उठे ना हाँ। लोग मेरियां कसमां चाहते ने, मैं तेरियां कसमां चाहना हाँ। फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, महबूब ये उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जबकि हर मामले में तेरा फैसला कबूल ना करें। और फिर क्या करें? सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैत व युसल्लिमू तस्लीमा, और फिर अपने दिल में उस फैसले के बारे में जरा सा बोझ भी महसूस ना करें, पूरे तौर पर अपनी गर्दन झुका दे महबूब तेरे फैसलों पर। जब तक ये वाला रवैया इख्तियार नहीं ना करते कि तेरा हर फैसला कबूल हो, तेरी हर बात कबूल हो, तेरा हर रंग कबूल हो, जब तक ये तस्लीम नहीं करते उतनी देर तक रब इनका ईमान कबूल नहीं फरमाता। जब तक पूरे तौर पर कबूल नहीं ना होते फैसले। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, मुसलमान दिलो जान से चाहते हैं कि हम नबी पाक की गुलामी करें। मुसलमानों की रूह चाहती है कि हम हर वक्त अपने नबी की बात माने। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बज़ाहिर दीन से बड़े दूर नजर आते, जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद बड़े गुनाहगार हैं, नौजवान हैं, दुनियादार हैं, कुछ ऐसे महकमों से वाबस्ता हैं जिनके बारे में बाज़-औक़ात बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये बिल्कुल दीन से दूर है। लेकिन मैंने हर किस्म के लोगों में वक्त गुजारा है, नौजवानों के साथ सफ़र किए हैं, उनके बीच बैठकर टाइम गुजारा है। मैं आपको सच कहता हूँ, तजर्बे के बाद कहता हूँ, समझ बूझ के कहता हूँ, क्लीन शेव वाले नौजवानों की आंखों में हुजूर की मोहब्बत के लिए आए हुए आंसू देख के कहता हूँ, चढ़ती जवानियां जो मदीने के लिए तड़पती हैं, उन जवानियों के दामन से फूटने वाली ज़ियाएं देखकर कहता हूं, चाहते हैं मुसलमान हुजूर की गुलामी करें। सिर्फ मसला पता कितना है? बारिश का पहला कतरा नहीं बनते, कदम नहीं उठाते, फैसला नहीं करते, अपने अंदर वो जो वलवला है, वो जो शौक है, उसको ना अमली जामा नहीं पहनाते। आपके अंदर तड़प है, बस आप शुरू करें, छोड़ें, आप किसी से पूछना क्यों है, बस शुरू कर दें दुरूद और सलाम पढ़ना, छोड़ें माहौल को क्या देखना है। अगर आपको पता चल गया है कि महबूब को दाढ़ी वाला चेहरा पसंद है, तो फिर किसी को पसंद हो ना हो, रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। फिर फैसला करें, फिर तवज्जो करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इशारातन भी कोई बात करते ना। अच्छा, मैं बहुत सारे सूफिया को जब पढ़ता हूं ना, और बिलखुसूस आशिकों की दास्तानें पढ़ता हूं, तो जो रंग आशिकों ने पेश किया है ना, वो किसी और के बस की बात ही नहीं। ये जो उशाक होते हैं ना, उशाक, इनके ना जरा अंदाज ही थोड़े निराले होते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। ये आंखों को बंद करते हैं पर दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं पर किसके लिए? दीदार के लिए। बाकी एक पंजाबी शायर ने भी कहा है, मेरा कोई जरूरी नहीं आप सारे
शोरा से इत्तेफाक ही करें, लेकिन उसने कहा है अक्ल इतनी बुरी चीज नहीं, पर उसने कहा है इश्क दे चले ही नंबर ले गए। मैंने नहीं कहा, किसी की बात सुना रहा हूं। वो कहता है इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्लमंदां ते एवें ही, अक्लमंदां ते एवें ही उमरां गालियां, इश्क दे चले ही वो नंबर ले गए। और इकबाल भी कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इतनी बड़ी आग, ऊपर से परिंदा भी गिरे तो जल जाए, लेकिन जनाब इब्राहिम ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने पर, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी, और पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। सोच समझ के चले ना, अकल तो पुख्ता होती है, पक्की होती है, तो इश्क सोच समझ के चले तो अभी कच्चा है। इश्क सोच समझ के फैसला करे तो अभी पिलपिला है, अभी रस्ते में है। अकल आखदी झुग्गे नूं साम के रख, अपना आप समेटना चाहिए है। ते इश्क आखदा झुग्गे दा की करना है, झुग्गा बाल के सेकना चाहिए है। ये जो लोग होते हैं ना मोहब्बत वाले, इनके निराले अंदाज होते हैं। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु जुमा पढ़ने आए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने किसी सहाबी से फरमाया बैठ जाओ। ये दौरान गुफ्तगू कभी कभी नज़्म ज़ब्त ठीक करने के लिए किसी को मुतवज्जे करना पड़ता है। कभी कभी मैं भी प्यार से कह देता हूँ मोबाइल वाले भाई, ये कहना पड़ जाता है। फिर किसी दफ़ा असर भी होता है कि यार कोई मतलब नाराज़ ही ना हो जाए, ये कहना पड़ जाता है। तो अब मैं तो इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल वाले भाई कहूँगा तो कोई नाराज़ नहीं होगा, इसलिए कि सारे ही मोबाइल वाले भाई के, इसमें नाराज़गी वाली ये कसे बाशद है, सारे ही मोबाइल वाले भाई हैं, कोई इंशाल्लाह बिगड़ेगा। तो बहरहाल आप तवज्जो करें मेरी बात पर। तो कभी कभी नज़्म ज़ब्त ठीक करने के लिए कहना पड़ता है। तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, कह दिया किसी को। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे थे, उनके कानों में आवाज गई, वहीं बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया अब्दुल्ला वहीं बैठ गए, हुजूर आपने कहा नहीं था। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर तबसरा किया है ना, उसे इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है, हुजूर ने किसी से कहा बैठ जाओ, हुजूर ने किसी से कहा बैठ जाओ, पर मोहब्बत रसूल का आलम देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा दरवाजे पर बैठ गए, चूंकि हुजूर ने नाम नहीं ना लिया, वो वहीं बैठ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या तबसरा किया, अल्लाह के महबूब फरमाने लगे अल्लाह ताला तुम्हारी अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी की हिर्स में अल्लाह और इजाफा कर दे। ये जो तुम्हारे अंदर हिर्स है ना कि मैंने रब रसूल की फर्मा बरदारी करनी है, अब्दुल्ला मेरी दुआ है अल्लाह इस हिर्स में इजाफा कर दे। हिर्स बड़े हैं, इंसान बड़ी चीजों का हरीस है, पर हुजूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबा रब रसूल की फर्मा बरदारी के हरीस हैं। ये हिर्स करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गुलामी हो, ज्यादा से ज्यादा फर्मा बरदारी करें, ज्यादा से ज्यादा महबूब के नक्शे कदम चलें। मेरे दोस्तों, इसी तरह एक सहाबी और थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। उनका नाम था आस। हुजूर ने फरमाया कहाँ थे भाई, नमाज में नजर नहीं आए। या रसूलल्लाह वो आपने फरमाया नहीं था बैठ जाओ। अच्छा, हुजूर ने किसी और से कहा, पर सानू कैद सजन दा गहना है। हुजूर ने किसी और से कहा, वो दरवाजे के बाहर बैठ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आस कहाँ थे? हुजूर मैं दरवाजे के बाहर बैठ गया। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया तुम आस नहीं हो, तुम तो मुती हो, तुम तो फर्मा बरदार हो। आज से तुम्हारा नाम मुती है, फर्मा बरदारी करने वाला है। तुम ऐसे फर्मा बरदार हो कि मैं किसी और को इशारा करूं। तुम इतने मोहब्बत करने वाले हो, तुम समझते हो मेरे महबूब की बात है ना, तो मुझे भी आगे बढ़ के कबूल करनी चाहिए। मेरे अजीजों, मैंने कहा हम चाहते हैं हुजूर की मोहब्बत के मुताबिक अमल करें, लौट आए, लेकिन हम ना बारिश का पहला कतरा नहीं बनते, फैसला नहीं करते। आगे बढ़ूं, हमारे ज़मीर जाग गए हैं, पता हमें चल गया है
کہ حال نہ جمہوریت، نہ ڈکٹیٹرشپ، نہ صدارتی نظام، نہ فلانا نظام، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ نجات حضور کے قدموں میں ہے، سمجھ ہمیں آ گئی ہے کہ نجات نبی پاک کے قدموں میں ہے، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نہ وہیں الجھے رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں، ضمیر جاگ گیا ہے، فیصلہ نہیں کرتے، چلو پورے ملک میں تو دین نافذ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اپنے 6 فٹ کے قد پہ نہ نافذ کریں، اپنے گھر پہ نہ نافذ کریں، اپنے دفتر پہ نہ نافذ کریں، اپنے ادارے میں نہ نافذ کریں، اپنے یاروں میں نہ نافذ کریں، یہاں سے تو شروع کریں نا، یہاں سے تو آغاز کریں۔ آپ یقین کریں 5 دوست اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں نا، 5 دوست، تو ایک دوست شروع کر دے جب بھی ملاقات ہو نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کرے، ایک دوست کہنا شروع کر دے یار آؤ نہ نماز پڑھنے چلے، ایک، دیکھو میں نے 5 میں سے ایک کہا ہے، ایک کہنا شروع کر دے یار بس اب جھوٹ نہیں بولنا یار، بس بڑا ہو گیا، ایک صرف ان میں سے پیغام دے کہ نہیں یار دھوکہ دہی نہیں کرنی، ایک ان میں سے کہے کہ یار تھوڑا سا نا وقت اب ماں باپ کے لیے بھی نکالنا ہے، اب گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا وقت دینا، ایک، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ باقی 4 سامنے شاید مذاق اڑائیں، سامنے شاید کہیں بیٹھ جا تو اتنا نیک پتہ ہے ہمیں تیرا، لیکن میں سچ کہتا ہوں وہ سامنے آپ پر تنقید کریں گے لیکن دل ان کا گواہی دے گا یار کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے۔ یہ دین کے اندر، یہ نبی پاک کی محبت کے پیغام کے اندر اللہ نے نا جاذبیت بڑی رکھی ہے، اس میں کشش بڑی رکھی ہے، اسلام کے اندر لچک بڑی رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، اس کے اندر سے ہمیشہ ضیاء پھوٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ آپ حضور کا پیغام دے دیں، مزاج بنائیں، کہہ دیں، آپ یقین کریں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، اس کے اندر بڑا کرم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، آپ محسوس کریں گے کہ میرے کہہ دینے سے انقلاب آ گیا، بہتری آ گئی۔ آپ اس پیغام، اور یہ سب کے لیے بنائیں آپ، یہ کسی کے حق میں بھی کوئی بھی سامنے ہو، آپ کا نعرہ ہمیشہ محبت رسول کا ہونا چاہیے، وہ دوستوں کی محفل ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو۔ بات ایک صحابی تھے حضرت برا بن مالک، نوجوان تھے، اچھا جس طرح سیر کرنے کا مزہ جوانی میں ہے نا، کپڑے پہننے کا لطف جوانی میں ہے، سفر کرنے کا ذائقہ جوانی میں ہے، چلو مجھے کیا لینے دو، کھانے پینے کا لطف بھی جوانی میں ہے، جس طرح دوستوں کے ساتھ آنے جانے بیٹھنے گپ شپ کرنے کا لطف جوانی میں ہے، او میرے بھائیوں حضور سے عشق کرنے کا مزہ بھی جوانی میں ہے۔ یہ کبھی جوانی میں لگ جائے نا، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، اگر آئی ہوتی نا تو یقین کرو آپ کو سمجھ آ جاتی، اگر یہ سمجھ آئی ہوتی تو آپ کو سمجھ آ جاتی۔ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں، تے مینوں کھیڑاں بھل دیاں بھل گئیاں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر میں او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کئی دفعہ آپ تھکتے نہیں، کبھی آپ بلوچستان میں ہوتے ہیں، کبھی آپ سندھ میں ہوتے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ آپ لاہور کی کسی تقریب میں شریک تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں خبر آتی ہے کہ یہ تو بہاولپور پہنچ گئے، تو آپ تھکتے نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، پر ایک شوق ہے ان سارے سفروں کا، ان ساری صحبتوں کا۔ میں اب آ کے یہ کیفیت ہوئی ہے کہ کبھی کمر درد کرتی ہے، کبھی پٹھوں میں تکلیف ہوتی ہے، کسی وقت آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ سارے سفر، یہ ساری جد و جہد
किसी वक्त अर्ज करता हूँ महबूब की बारगाह में कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। बस इतनी आरज़ू है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। इतना सा दिल करता है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, सब हो। एक सहाबी हैं हजरत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, चढ़ती जवानी और इश्क रसूल भी पूरा जोबन पे, उनके कद काठ का भी पूरा बाकपन और मोहब्बत रसूल के दरिया भी पूरे का पूरा उनके सीने में मौजूद। तो हुजूर का मुझे यूं लगता है कि इरादा करम हुआ कि लोगों को बताऊं भला ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे। बड़े खुशकिस्मत थे जो हुजूर के सामने नबी पाक से हुक्म लेते थे। फरमाया बरा मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे? अर्ज की हुजूर हुक्म करें तो सही। तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। तलवार थामी और दौड़ पड़े, भागे। करीम महबूब फरमाने लगे जाओ इसे पकड़ लो वरना ये सचमुच बाप की गर्दन ले आएगा। उनको सहाबा पकड़ के लाए तो महबूब फरमाने लगे वो तो एक बात गोया आजमाने को की थी, मैं कोई रिश्ते तोड़ने तो नहीं आया दुनिया में, मैं तो रिश्ते जोड़ने आया। उनकी मोहब्बत रसूल का ये लेवल था कि आप हुक्म करें तो मैं बाप की गर्दन लाने को तैयार हूं। गोया मैं हर रिश्ते हर नाते की कुर्बानी पेश करने को तैयार हूं। या रसूल अल्लाह मुझे सिर्फ आप चाहिए। उनकी मोहब्बत का ये लेवल था। और इस लेवल पर उन्हें अजर क्या मिला? जब वो बीमार हुए तो महबूब तीमारदारी के लिए गए। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी इयादत को आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्या बनेगा, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखी तो एक दुआ फरमाई। महबूब फरमाने लगे ए अल्लाह, देखें इस दुआ का हुस्न देखें। फरमाया ए अल्लाह जब बरा बिन मालिक से तेरी मुलाकात होना तो तू इससे मुस्कुरा के मिलना जो तेरी शान के लायक है। ऐ अल्लाह तू इससे मुस्कुरा के मिलना और ये तुझसे मुस्कुरा के मिले। और सुनो मेरे भाइयों, इस हदीस पाक का नतीजा सुनो। इसका नतीजा उलमा फरमाते हैं ये निकलता है कि जो मुस्तफ़ा करीम से रज के मोहब्बत करेगा, खुल के मोहब्बत करेगा, हर रिश्ते से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करेगा, उसके अजर के लिए हुजूर ने दुआ फरमाई है जब कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा तो रब उससे मुस्कुरा के मुलाकात करेगा जो उसकी शान के लायक। और बंदा भी रब से मुस्कुरा के मिलेगा। मेरे अजीज याद रखिएगा कि अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर की मोहब्बत हमेशा अपना लें। अच्छा बाज़-औक़ात ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, कठिन रास्तों से भी गुजरना पड़ेगा। आपको सारा कबीला मना करेगा, सारी बरादरी रोकेगी, मुझे क्या लेने दो, खानदान में वालिदैन भी मना करेंगे। आपको मोहब्बत रसूल के रास्ते पर चलना है तो बहुत सारे अहबाब भी आपको कहेंगे ओ यार दुनिया का भी माहौल समझना पड़ता है, हालात देखो बदल गए। माज़अल्लाह कुछ लोग ये भी कहते हैं वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। लोग आपको बड़ी आरा पेश करेंगे, बड़ा बड़ा रंग पेश करेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएं, इस पर गौर कर जाएं कि हमेशा बरकत रसूलुल्लाह की बात मानने में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी और मोहब्बत में कभी नुकसान नहीं होता। एक हुजूर के सहाबी थे हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला, सही मुस्लिम शरीफ में उनका तज़किरा मौजूद है। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला का रंग ज्यादा गोरा नहीं था, खूबसूरत आदमी नहीं थे, कद भी बहुत ऊंचा नहीं था, यानी यूं समझ लिए कि कद भी थोड़ा सा इस तरह का था, रंग और रूप भी इस तरह का था, हालात कुछ और ही थे। उनकी शादी नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ फलां कबीले में जाके उन लोगों से कहो अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर। वो चले गए।
उन लोगों से जाके कहा। लेकिन उन लोगों ने जब हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना ना, ये वही जुलाबीब हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया ये मुझसे है और मैं इससे हूं। लोगों ने जब आपका नाम सुना तो जाहिर है बेटी वाले बड़ा सोचा करते हैं, उनको गौर करने का पूरा हक हासिल होता है। उन्होंने कहा हजरत जुलाबीब ना तो कद काठ है, ना रंग रूप है, ना पास कोई पैसा है, तो ये किस तरह बात आगे चलेगी, किस तरह मामला बेहतर होगा। उन्होंने थोड़ी लैतो लाल्ला की बात करने में, समझने में थोड़ा वक्त लिया। वो जिस बेटी के लिए पैगामे निकाल लेके गए थे वो पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी आप मुझे हुजूर के हवाले करें। फैसला अगरचे मुश्किल है, रास्ता अगरचे कठिन है, पर चूंकि नबी करीम ने फरमाया है लिहाजा आप मुझे हुजूर के हवाले करें। उस खातून का निकाह अल्लाह के महबूब के हुक्म पर हजरत जुलाबीब से हो गया। 2 दुआएं मेरे नबी पाक ने दी। जब शादी हो रही है तो खामन ना ज्यादा खूबसूरत है, ना मालदार है, ना खूबसूरत का अधिकाट है, 2 दुआएं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। कहा ऐ अल्लाह इसके लिए हर किस्म की खैर मुकद्दर फरमा और इससे जिंदगी की हर तकलीफ से महफूज फरमा। कल तक वो गरीब थी, फैसला किया मोहब्बत रसूल में। फैसला मुश्किल होता है लेकिन करने के बाद पता चलता है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मैंने बड़ा पहले एक शख्स से कहा था, एक उम्मीदवार थे असेंबली के, तो मुझसे मिले तो मुझे कहने लगे आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, लोग हमें भी बड़े वोट देते हैं। मैंने कहा आपको वोट देते हैं, हमें तो जान देते हैं। आपका हमारा बड़ा फर्क है, तो आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक होगी, लेकिन जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नबी पाक ने दुआ दी, ऐ अल्लाह खैर मुकद्दर करना, हर तकलीफ से महफूज रखना। सहाबा फरमाते हैं फिर उसी खातून को हमने देखा, ना मदीने में अंसार में उससे ज्यादा कोई मालदार खातून थी और ना उससे ज्यादा खर्च करने वाली कोई खातून थी। आपको मोहब्बत रसूल में वक्ती फैसला करना मुश्किल लगेगा, लेकिन याद रखना मेरे भाई, फिर मोहब्बत रसूल बाद में जो इंसान के लिए वुस्सतें पैदा करती है ना, अपने लबो लहजे में कहूं, फिर हुजूर से प्यार करने वालों की जो मौजें लगती है ना, फिर जो करम होता है ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। फिर वो जो नतीजा निकलता है वो बड़ा शानदार है। अगरचे वक्ती तौर पर कुछ चीजें मुश्किल महसूस होती हैं, लेकिन फिर करम हो जाता है। एक सहाबिया थी हजरत फातिमा बिनते कैस, उनके लिए भी मुश्किल था निकाह का फैसला करना, लेकिन उनको पता चला ना कि नबी पाक की ख्वाहिश है कि मैं उसामा बिन जैद से निकाह कर लूँ, तो उन्होंने फौरन जनाब उसामा बिन जैद से निकाह कर लिया। हुजूर की ख्वाहिश को पेश नज़र रखा। 2-3 चीज़ें हमें समझनी है, बस बात समेटने लगाऊं। एक तो जहां जहां नबी पाक ने हद बंदी की है ना, उस हद बंदी को कभी नहीं तोड़ना। जो हुदूद, जो दायरे, जो कवानीन नबी करीम ने बयान फरमा दिए हैं, उनसे कभी तजावुज नहीं करना। देखो, सोने की अंगूठी हुजूर ने मर्द को हराम करार दी, सारा जमाना भी कहे तो ये हाथ पर पहननी नहीं चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनमें हुजूर ने ना हद बंदी कर दी। पीतल तांबा मर्द के लिए नहीं जायज, ना पहने आप। रेशम का लिबास ना पहने। जहां हुजूर ने ताय्युन कर दिया हुदूद का, आप कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। आप उस पे, एक सहाबिया थी, उनका सगा भाई इंतकाल कर गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि किसी का भी सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, सिवाय उस औरत के लिए जिसका खामद चला जाए, वो इद्दत पूरी करे। तो सहाबिया 3 दिन के बाद उठी, खुशबू लगाई, धुले हुए कपड़े पहने, वक्ती तौर पर उस वक्त जो मुरव्वज जीनत थी वो जीनत इख्तियार की, और फिर कहने लगी मुझे इस जीनत की जरूरत नहीं थी, पर चूंकि नबी पाक ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करना, लिहाजा मैं उठ के इसलिए कपड़े बदले हैं कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहती, मदीने वाले महबूब की शरीयत की तरफ देखना चाहती हूँ। जो हुदूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई हैं, उनसे कभी भी हमने तजावुज नहीं करना। दूसरी बात यह है कि मोहब्बत रसूल का हमसे तकाजा यह है कि
जब रब रसूल को राजी करना हो ना, फिर अपनी ज़ात नहीं देखनी। मेरा कद बहुत बड़ा है तो फलां से माफ़ी मांगूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं तो अब मैं झुक जाऊं, मुझे इतने लोग जानते हैं तो अब मैं जनाब थोड़ा सा अपनी गर्दन को झुकाऊं। मैं आशिक रसूल में मैं नहीं होती। आशिकान रसूल के अंदर किसी किस्म की अना परस्ती, आशिक लोग ते रमले कमले, वो तो बेचारे सीधे सादे लोग होते हैं। उनके तो मिजाज के अंदर फकीरी होती है, सादगी होती है। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मेरा और जनाब अम्मार इब्ने यासर का रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों सहाबा जलील कद्र हैं, अजीम मर्तबे वाले। जनाब खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, किसी बात में हजरत अम्मार इब्ने यासर से शक्ल रंजी हो गई तो जनाब अम्मार इब्ने यासर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मैं भी पहुंचा। फरमाते हैं, दोनों की बात सुन के बस हुजूर ने इतना कहा, कोई फैसला नहीं फरमाया कि इसमें गलती पर कौन है, हक पर कौन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना फरमाया, याद रखना जिसने अम्मार इब्ने यासर को नाराज किया उसने अल्लाह रसूल को नाराज किया। भाई इतनी बात हुजूर ने कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद सिपा सालार आदमी थे, बड़े कबीले के थे, बड़ा कद काठ था, बड़ा नाम था, बड़ी बल्ले बल्ले थी, सैफुल्लाह है। लेकिन आप फरमाते हैं चूंकि हुजूर ने फरमाया अम्मार इब्ने यासर को राजी करोगे तो अल्लाह रसूल राजी होंगे, फरमाया मैं उनके पीछे पीछे फिरने लगा। मेरे लिए उनकी रजा से बढ़कर कोई और रजा, और कोई रजा हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर हुण ते रोल दी रुल गईयां। जब नबी पाक ने फरमाया है कि ये रजा, देखे ना, हुजूर ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का अमीर बनाया था, हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने मशवरा दिया कि आप इस नौजवान को, ये बिल्कुल जवान है अभी, बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद हैं, किसी और को बना दें। फरमाया उसे पीछे करूं जिसे मदीने वाले महबूब ने आगे लगाया है, बल्कि उनको घोड़े पे सवार करके खुद उसी घोड़े की लगाम पकड़ के जनाब सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन पैदल पैदल चल रहे हैं। तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप ऊपर आइए। फरमाया तू ऊपर ही रह जिसे हुजूर ने अमीर मुकर्रर फरमा दिया है। तो मेरे भाई, आप फिर ये ना महसूस करें कि मैं बड़ा चौधरी हूं, मेरा बड़ा कद काठ है, फिर हमने अपना कद नहीं देखना, महबूब पाक की नजर इनायत को देखना है, हुजूर की रजा को देखना है। याद रखिएगा एक तीसरी बात, एक हुदूद को नहीं तोड़ना, एक हुजूर की रजा हासिल करने के लिए अपनी अना नहीं सामने आने देनी। एक तीसरी बात और, तर्ज जिंदगी सादा इख्तियार करना है अगर हुजूर से प्यार करना है तो। बड़ी जरूरी बात है, बड़ी जरूरी। आप सादा ग़िज़ा खाएं, सादा नशीस्त, सादा लिबास, सादा अंदाज़े गुफ्तगू, लोगों से बिला तकल्लुफ मुलाकात, आपके लबो लहजे में किसी किस्म की तसन्नो ना हो, बनावट ना हो, तकल्लुफ ना हो। आप अगर हुजूर के गुलाम हैं, नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप कोई किसी किस्म का अपने लिए प्रोटोकॉल ना चाहें। सहाबी आए थे ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। कैसा खुशबख्त है, हुजूर के सामने इजहार मोहब्बत कर रहा है, मैं बड़ा प्यार करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया सोच कर कहो क्या कह रहे हो। हुजूर बड़ा प्यार करता हूं, फरमाया सोच ले, हुजूर बड़ा प्यार करता हूं। तीसरी दफा महबूब ने फरमाया सोच ले, हुजूर मुझे बड़ा इश्क है आपसे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर तैयारी कर ले, फकर तेरी तरफ दौड़ के आएगा, फिर तेरी तरफ गरीबी आएगी। जो मुझसे प्यार करता है उसकी तरफ फकर आता है। तो ये याद रखें कि इसे सिर्फ और सिर्फ फूलों की सेज ना समझना, और फकर की कई किस्में होती हैं, सिर्फ पैसों की कमी फकर नहीं होती। आपका तर्ज जिंदगी सादा होना चाहिए, अंदाज फकीराना होना चाहिए, उठना बैठना सादा होना चाहिए, क्योंकि ये सादगी मेरे नबी की पसंद है। एक रवायत मुझे याद आ रही है, मेरा दिल करता है आपको सुना दूं। कभी कभी ना कुछ फरमाइशें भी होती हैं, आपका नहीं मुझे पता, मैं अपनी अम्मा से फरमाइश किया करता था कभी कभार कुछ चीज़ अपनी मर्जी की खाने के लिए, अम्मा जी कभी साग बना दो ना, तो कभी उनसे कहते थे स्पेशल वाला गुड़ खाना है। ये देहाती माहौल बड़ा शानदार होता है। आपको पता है नबी पाक को मक्के से हजरत हलीमा के गांव में क्यों भेजा गया था? इसलिए कि मक्के के लोग छोटे बच्चों को वहां भेजते थे, कहते थे फिजा भी खालिस है, जुबान भी खालिस, देहातों की जुबानें खालिस होती हैं। कभी कभी ना फरमाइशें होती हैं माओं से। हजरत सलमा मोमिनों की माँ
जनाब उम्मे सलमा। एक दिन ना उनके 3 बेटे, रूहानी बेटे, उनकी खिदमत में आए। कौन कौन? आप नाम सुन के भी बड़े खुश होंगे। हजरत जाफर तैयार है ना, हजरत अली के भाई, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर आए। और फिर उनकी खिदमत में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो नबी पाक के चचा जनाब अब्बास हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आए। और इन दोनों के साथ मौला अली के लख्त जिगर इमाम हसन भी आए। ये 3 शहजादे, अब्दुल्ला बिन जाफर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और इमाम हसन बिन अली, ये तीनों आए और आके हजरत उम्मे सलमा से कहने लगे, हमारा आज वो खाना खाने को दिल करता है जो नबी पाक को बड़ा पसंद है। अम्मा जी, हमारी माओ से बंदा फरमाइश कर लेता है ना, तो हमारी फरमाइश है वो वाला खाना बनाएं जो हुजूर को पसंद है। तो हजरत उम्मे सलमा ने ठंडी आह भरी, फरमाया, बेटा वो बड़ा ही सादा है, खा लोगे? अम्मा जी खा लेंगे। तो जनाब उम्मे सलमा ने ना थोड़े से जौ निकाले, फिर उनको पीसा, फिर थोड़ा सा जैतून डाल के पकाना शुरू किया, फिर थोड़ा सा उसमें मसाला डाला। फरमाते हैं वो सादे से जौ जैतून में सादे से पके। फरमाते हैं वो हमारे सामने रख के हजरत उम्मे सलमा जब उठी तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगी, इस तरह के सादे खाने मदीने वाले महबूब खाया करते थे। इस तरह के सादे खाने महबूब तनावुल फरमाते थे। ये सादगी, ये शाइस्तगी, उस सादगी में ये हुस्न, मारिफत, कमाल, यानी इस तरह की सादगी हुजूर अपनाते थे कि जब इस सादा चेहरा नूर को हजरत जाबिर बिन समरा जैसे लोग देखते थे तो देख के कहते थे, आज मैंने तज्जिया करना है कि चांद ज्यादा सोना है कि आमिना का चांद ज्यादा सोना है। लेकिन फरमाते हैं फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद तो है दागदार और मदनी का चेहरा साफ है। आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि सादा तर्ज जिंदगी अपनाएं। हम सादे रहेंगे ना तो बहुत सारे चूल्हे ज्यादा जल जाएंगे। हम सादे रहेंगे तो बहुत सारे दोस्त कतराएंगे नहीं। हमारे महंगे कपड़े देख के कोई पूछेगा नहीं किन्ने दा लिहाज है। तो थोड़ा सादा जिंदगी अपनाएं और एक जो हुजूर ने हुदूद कायम कर दी हैं उन हुदूद का जरूर ख्याल करें। एक फैसला करें हुजूर की मोहब्बत में। आप फैसला करेंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे। एक ज़रूरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ना बहन भाइयों के मामैन मोहब्बत के बड़े कायल हैं। यानी जो मोमिनों का रिश्ता है ना आपस में, उसे भी हुजूर ने फरमाया मोमिन भाई भाई है। हुजूर कायल हैं बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुक है आप बड़ा ज़बरदस्त करके और जिम्मेदारी से मियाँ बीवी के रिश्ते को निभाएं। माँ बाप का रिश्ता बहुत नाजुक है, उसे निभाएं। लेकिन बहन भाइयों को भी अल्लाह ने एक लड़ी में परोया होता है। एक भाई बैठा रहता था हुजूर की खिदमत में, दूसरे भाइयों ने आके शिकायत की, या रसूलल्लाह हमें सारी मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह के हबीब फरमाने लगे, तुम्हें जो रिस्क मिलता है वो भी इसकी बरकत से मिलता है। तो बहन भाइयों के मामले में थोड़ा अपने आप को, जब हजरत शीमा जनाबे हलीमा सादिया की बेटी आई हैं तो नबी करीम ने फरमाया मेरी बहन आई है। हालांकि वो रज़ाई बहन थी और उस बहन ने जब सिफारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सारे कबीले को छोड़ दें, अगरचे उस कबीले को बड़ी मुश्किल से फतह किया गया था। हुजूर ने किसी से मशवरा ही नहीं किया, फरमाया बहन ने कहा है लिहाजा सारे ही आज़ाद हैं। तो इस रिश्ते में मुझे ख़ास सवाल किया गया था, इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमाए।